Good evening and assalamu alaikum. This is Ruha Nadeem and we are starting tonight's show on a rather sad note, sad news for Pakistan cricket fans जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते रहे हैं वो इस न्यूज़ को भी जानते होंगे कि we lost a gem today, Mohammad Nazir Jr., who was known for his off-spin bowling, his batting as well, and later on in his career उन्होंने umpiring भी की. उनके करियर के आपने कुछ अभी हाइलाइट्स देखे जो क्लिप्स थे विजुअल्स थे बट ही इज़ ऑफ कोर्स being remembered across the country today as he left for his final abode. So thoughts and prayers for his family and of course everybody who was affected by his passing. हमने करियर के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर किए, उनके करियर के ऊपर मज़ीद भी थोड़ी बात करेंगे और इसी के साथ आज का शो भी हम शुरू करते हैं. We've got a packed panel for tonight and of course we'll talk about more things as the show progresses, starting with sports analyst and expert Hassan Azam. Hassan, assalamu alaikum, welcome to the show. How are you doing? Walaikum assalam, I'm doing great, alhamdulillah. And somber news to start off with, jaise aapne kaha, I'm one of the greats of Pakistani cricket, the first recognized off-spinner for Pakistan. He took 7 wickets on debut in Karachi against New Zealand and 829 first-class wickets with his, so many contributions to Pakistan cricket. He's one of the greats, absolutely, and commiserations to the family and may his soul rest in peace. May his soul rest in peace. आपके साथ हमने stats पे उनके share किए. 14 test matches Mohammad Nazir Jr. played with taking 34 wickets to his name and more of his contributions are there on your screen. इसी के साथ I would like to welcome another regular to the show, sports analyst and expert Hassan Qureshi is back with us. Assalamu alaikum Hassan, great to have you. How are you doing? Assalamu alaikum Raji. Yes, commiserations to the family. 15 years, test career, played first class cricket almost into his 40s and then continued to serve the game as an umpire also. So this is someone who had a lot of love for cricket, and someone who served Pakistan cricket with distinction in a number of fields. So our thoughts and prayers are with his family. बिल्कुल उसी के साथ जी बैठे हैं GM Islamabad United regular now at our show as well, Rehan Ul Haq. Rehan, pleasure to have you once again. Thank you for your time. Your thoughts on the passing of Mohammad Nazir Jr. I think it's a very sad news for Pakistan cricket in general, and as both of these gentlemen mentioned, you mentioned that it's a loss for Pakistan cricket. Loss सिर्फ player का नहीं होता, as a person as well, his influence on Pakistan cricket can be considered huge because अगर आप देखें तो हसन ने जिस तरह का फर्स्ट रिकग्नाइज्ड ऑफ स्पिनर, उसके बाद आपके कितने ऑफ स्पिनर्स आए हैं. So you look at their careers and also what he did post retirement, which is umpiring as well, one of the pioneers of umpiring as well, जो आपकी international umpiring का standards होते हैं उसके ऊपर. So and later I found out that he was also part of some coaching courses for umpiring as well, helping new guys come through. तो इस तरह के लोग, when you lose such people, then you lose a part of your cricket culture as well. So it's very sad news, and maybe those stats don't reflect how good he was because of some of the surfaces that he played on, but his domestic record I think speaks for itself, and it's very sad news that he's no longer with us. बिल्कुल, and thank you gentlemen for sharing your thoughts. और हम लोग अपना प्रोग्राम का officially अब आगाज़ करते हैं because we have lots to get into tonight. Let's start with, of course आपने अभी mention किया कि कोई ऐसा player जब जाता है जिनकी legacy is far beyond stats, तो वो after they pass या after they retire even, आप उनकी greatness को या उनके impact को कैसे measure करते हैं? Even now there are a lot of ways to measure a player's contributions, but stats always give us a very clear picture of what how the player contributed, especially towards winning causes. अगर हम पाकिस्तान की bowling के ऊपर generally बात करें तो आज का क्योंकि topic भी हमारे show का बहुत interesting है, let's start with why Pakistan has not produced a single fast bowler to take 200 plus test wickets since the 1980s. So if I am reading that correctly, since the 1980s पाकिस्तान ने कोई भी फास्ट बॉलर ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया जिसने 200 प्लस टेस्ट विकेट्स लिए हों. और जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं रीजंस जानने के लिए, आज हमारे पास जो पैनल है दे विल हेल्प यू understand why this is the case, क्योंकि historically Pakistan has been known for its pace bowlers, pace battery across the formats along the years. But Hassan, let's start with you. This is a list of all the Pakistani bowlers who have made huge
contributions in the international game. लेकिन despite all of these contributions, 80s के बाद अभी तक 2024 में हम आ गए हैं, 200 प्लस विकेट्स क्यों नहीं कोई भी टेस्ट प्लेयर ले सका? Yeah, I mean, it's a very mind-boggling actually, जिस तरह आपने कहा ये फैक्ट है, और सुन के हैरान कुन जाहिर होता है। और 90s के बाद से जितने फास्ट बॉलर्स ने डेब्यू किया है, आपके सामने स्क्रीन पे हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान वाज बिफोर दैट, तो उनकी 200 विकेट्स मुकम्मल नहीं हो सकी, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसकी वजूहत हम आई एम श्योर इस शो में डिटेल में जाएंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कितने पाकिस्तान ने खेले, हम बात करेंगे कि एवरेजेस क्या रही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए जब वो होम कंडीशंस पे खेलते रहे, कितना होम कंडीशंस पे खेले, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कितना था, इंजरीज ने क्या पार्ट प्ले किया, आपकी टीम सिलेक्शन ने क्या पार्ट प्ले किया, प्लेयर की कंसिस्टेंसी के ऊपर बात होगी, प्लेयर की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर बात होगी, उसके लुक आफ्टर के ऊपर बात होगी, वर्कलोड के ऊपर बात होगी। रोहा जी, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। चलिए इसमें से एक अभी टू स्टार्ट ऑफ विद, जिस तरह आपने मेंशन किया, I'd like to come to you now कि is it a factor of Pakistan not playing enough tests? ये कितना reason है towards this mind-boggling stat? I mean, in recent years, we can say yes, but from the 90s onwards, I'll be very honest with you, when we had this discussion, I thought there's no way we can only have 3 bowlers with more than 200 test wickets, fast bowlers. I thought there's 2 or 3 more guys in there. अब उसको detail से पढ़ने के बाद जब आप देखते हैं, it does shock me, and I like to think I'm someone who's watched a lot of cricket, but apparently not watched enough of it. थोड़ा सा है, आप कह सकते हैं कि आपने शायद उतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले, बट जो आपने खेले, हम अगर उस पिछले ग्राफ पे जाते हैं तो we saw that no bowler, this is something Rehan also mentioned to us off air, no bowler, no fast bowler has played 50 test matches since that time. अगर एक bowler इतना amount खेलेगा ही नहीं, तो हम कहाँ से expectation रखेंगे उनसे if they don't play enough games? Pakistan may or may not be playing enough games, but our fast bowlers have definitely not played enough games, whether it's been because of injury, whether it's been because of selection. That is mind-boggling to think that we don't have anyone. Waqar Younis made his debut in 1989. Uske baad se leke ab tak, you don't have a single fast bowler who's gone on to 200 wickets. The closest is Shoaib Akhtar with, is it 178 or 176? I mean, when you look at all the people who've debuted for Pakistan in that time, the number of fast bowlers, that you don't have those numbers, it's more than shocking, it's also very worrying. Rehan, coming to you now with this, number of test matches कम मिलते हैं पाकिस्तान को, इसमें गलती किसकी है? हम पिन पॉइंट किस पे करेंगे? अच्छा, हमारा FTPs नहीं बनते सही, हमारे पास होम टेस्ट नहीं आते as compared to away tests. I think if you see the table, जो decade by decade अगर हम चलें, तो अगर आप different decades के अंदर 2000s के अंदर पाकिस्तान roughly plays the same number of matches as New Zealand, 3 more matches actually than New Zealand. Then अगले decade के अंदर भी you were close to New Zealand and New Zealand still produced those fast bowlers, ठीक है? अब FTP में 2020 onwards भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान has played 34 test matches, but the problem with this is कि आपने वो कहाँ पर खेले हैं, और FTP negotiations के अंदर अक्सर पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये होती है कि आप फास्ट बॉलर की कंड्यूसिव एरियाज के अंदर वहाँ पे आप मैचेस कम खेल रहे हैं. पाकिस्तान डजंट प्ले एनफ टेस्ट मैचेस इन अ प्लेस लाइक साउथ अफ्रीका, अ प्लेस लाइक इंग्लैंड, जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर विकेट्स ले सके. ऑस्ट्रेलिया के आपके बहुत कम टूर्स होते हैं, हम तो 99 के 96 ऑनवर्ड्स हम वहाँ पे कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते आज तक. इनफैक्ट सारे हारे हैं, ड्रॉ भी नहीं हमने किया. तो दे लाइक वो भी हमें इनवाइट उतना नहीं करते. एंड देन देयर इज मोनोपोली ऑफ द बिग 3 प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर. और वो जब तीनों आपस में खेलते हैं, वो ऐसी कंडीशन है कि तीनों मुल्कों में, इवन इंडिया में भी, अगर आप एवरेजेस की बात करें तो फास्ट बॉलर्स की एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आपको लगती है, वो कम होती गई है. वेयर एज पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन पिचेस वेयर यू नो इवन व्हेन फॉरेन टीम्स कम हेयर, 2020 ऑनवर्ड्स तो खास करके पाकिस्तान में, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसकी होम एवरेज फास्ट बॉलर्स की 30 से ऊपर हो, सिवाय 2 मुल्कों के, पाकिस्तान और बांग्लादेश. और इन दोनों मुल्कों की 40 से ऊपर है और पाकिस्तान में 47 से ऊपर है. तो वो बेचारे फास्ट बॉलरों का कसूर नहीं है. आप मोहम्मद अली को लेके आते हैं टीम के अंदर बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, आप बेचारे का करियर पिंडी में शुरू करा के पिंडी में ख़त्म कर देते हैं. तो दैट आई मीन दोज आर थिंग्स. एंड अदर लाइक अ फैक्टर दैट व्हाई डोंट वी प्ले इनफ फास्ट बॉलर्स. देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम पता है क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. दिस इज माई ओपिनियन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट. पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट खेली जाती है, क्रिकेट. इट इज़ द ओनली स्पोर्ट. स्पेशली 80s ऑनवर्ड्स हम ये बात कर रहे हैं, तो हॉकी 90 ऑनवर्ड्स उस तरह नहीं. तो एवरी वन गॉट इन्वेस्टेड इन क्रिकेट, एवरी वन वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. ठीक है, आपके पास टैलेंट की कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है. 10 मैच में एक फास्ट बॉलर नहीं परफॉर्म करता, आप कहते हैं चल निकल मेरे पास ये है.
शाहनवाज धानी आता है, शाहनवाज धानी जाता है, हसनैन आ जाता है, नसीम शाह आ जाता है, वो जाते हैं, मोहम्मद अली आ जाता है, खुरम शहजाद आ जाता है। आपको पता है यार इंजर हुआ, मेरे पास 130 से 40 कराने वाला भी, 140 से प्लस भी है। वो कन्वेयर बेल्ट जब आपकी ज़्यादा है ना, तो आप बेसिकली किसी पे इन्वेस्ट नहीं करते। और न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जिधर गिन के 4 बॉलर निकलते हैं उनके 20 साल के अंदर, उनको पता है कि वैगनर ने ये मैच खेलने ही खेलने हैं, तो उनकी कन्वेयर बेल्ट नहीं लगी हुई, एंड दैट्स व्हाई दोज गाइज आर प्लेइंग मोर टेस्ट मैचेस एंड दे आर विनिंग, लाइक पिकिंग अप दोज विकेट्स। तो बेसिकली टू समराइज दिस, जो चीज़ हम समझ रहे थे कि हमारा एडवांटेज है कि हमारे पास एक प्लेंटी, एक अबंडेंस ऑफ फास्ट बॉलर्स है, वो कहीं ना कहीं इट हैज़ आल्सो बिकम अ रीज़न व्हाई वी हैवंट गिवन अ फास्ट बॉलर इनफ चांसेस, और हमने एक करियर ग्रेट नहीं बनाया सिंस वकार यूनिस। That's so true, Roha ji. Just to add on to what you said, देखिए since 2000 पाकिस्तान ने 52 फास्ट बॉलर्स को डेब्यू करवाया है। If you look at somebody like New Zealand, उन्होंने 39 को करवाया है। They're in that list, 4 of them are there. अगर आप इंडिया की बात करें, उन्होंने 34 को करवाया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन्होंने 40 को करवाया है। Just to back up on what Rehan is saying and what you were saying, the reason is कि आपके पास जब ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, you discard people more quickly as well. और जिस तरह पिछले जस्ट टू ऐड ऑन टू जो पिछला स्टार्ट बात हो रहा था कि जिस तरह रेहान ने कहा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मोरलेस सेम मैचेस हैं, इवन न्यूजीलैंड ने 80 खेले उस पीरियड में 2000-2009। अगर आप वहाँ के स्टेटिस्टिक्स देखें, पाकिस्तान 2000 से 2009 में 32 मैच घर पे खेलता है, कम नंबर ऑफ मैचेस खेलता है इन प्रोपोर्शन, इट्स नॉट मोस्ट मैचेस 83 में से। एंड नंबर 2 थिंग, आपकी बॉलिंग एवरेज इज 32.7। कंपेयर दैट टू समबडी लाइक लेट्स से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 54 मैचेस खेलता है घर में आउट ऑफ 108, और उन 54 मैचेस में उनकी लेस देन 26 एवरेज है फास्ट बॉलर्स के लिए। तो कंड्यूसिव कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, हमने बात की 40 फास्ट बॉलरों ने सिर्फ डेब्यू किया सिंस 2000 ऑनवर्ड्स। वहाँ पर 115 में से 59 टेस्ट मैचेस होम पे खेले जाते हैं, अगेन मेजॉरिटी टेस्ट मैचेस, लेस देन 27 की एवरेज है। तो न्यूजीलैंड अगेन जो हमारे करीब है, लेस देन 30 की एवरेज है, 34 डेब्यू करते हैं। पॉइंट बीइंग, फास्ट बॉलर्स की आपके पास कन्वेयर बेल्ट जरूर होगी, लेकिन उस कन्वेयर बेल्ट को परफॉर्म करने के लिए डिड यू ऑयल दैट कन्वेयर बेल्ट, यू नो, डिड यू अलाउ दोस कंडीशंस आइडियली फॉर देम टू वर्क आउट। दिस हैज बीन फॉर मी एज वेल वन ऑफ द बिग रीजंस कि हमें वो मौका ही नहीं मिले कि वो उस तरह परफॉर्म कर सके। अच्छा, जस्ट टू फॉलो अप ऑन दैट पॉइंट के आर यू ऑयलिंग द बेल्ट, आर यू लुकिंग आफ्टर द प्लेयर्स? इंजरीज, यू नो, इट्स समथिंग जो कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अपने पूरे करियर में दे हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि दे आर फिट एंड दे आर, you know, achieving those milestones. And also it is the management's responsibility to look after your fast bowlers. Have Pakistan looked after its fast bowlers, especially players who have shown that promise, जिनके ऊपर आपको invest करना चाहिए, जिनको आपको protect करना चाहिए, look after करना चाहिए along the years? But अगर आप more recent example भी दे सकें, fast bowlers की injuries को manage करने में कहाँ पे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? हर जगह पे, because अगर आप देखें, if you look at someone like Junaid Khan when he came in and the way he performed on very unhelpful wickets, but yet the more he was bowled and the more injury problems he had, instead of looking after him, instead कि आपने Junaid को as an asset treat किया हो, उनकी अपने words में उन्होंने कहा कि there were many places, times where I felt lost. I didn't feel like I had the correct help or the correct guidance. लोग बात करते हैं कि domestic में आप देख लें, आप A team level पे देख लें, there are so many careers lost to injury, so many possible players who could have gone on to do well. And आप conveyor belt पे मुझे वो बात याद आती है, which was in the 2009 T20 World Cup when Suhail Tanveer debuted, and Ian Chappell said, in Pakistan, do they shake a tree and a fast bowler falls out? But the problem is, if you're just going to keep shaking the tree and they keep falling down, eventually the tree will run out of the fast bowlers coming in because you're discarding them that quickly. Are you giving injury management की? तो अगर हम across the board बात करें, सिर्फ fast bowlers की नहीं, I think हमारा record काफ़ी horrendous रहा है in terms of looking after players. Let's take an example of someone like Pat Cummins, who was injured for a very long time, but kept getting central contracts, kept getting contracts at state level. Took him 6 years to come back into the team. He debuted at 18, played a couple of test matches. They invested in him because they realized today he's a World Cup winning captain and a hugely important player for Australia. आप अपने लड़कों को देखें, 1 से 2 मैचेस के बाद अगर कोई injured हुआ है, how many times have they managed to come back in, and how many times have you kept faith in that player? Even अगर हम recently बात करते हैं, forget test match cricket, there has been so much talk about the fact that 2 years ago maybe, or a year ago, we were all talking about Ihsanullah. Where is he today? I was just about to get to that because you get to work so closely with
सम ऑफ द प्लेयर्स जो PSL में अपना मार्क छोड़ते हैं, लेकिन इज़ इट, आई वांट आस्क, ये आप तीनों से मेरा सवाल है एंड प्लीज़ फील फ्री टू चाइम इन, इज़ इट ट्रू कि यहाँ पे अब हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं, अगर उनको कोई निगल है या कोई इस तरह का साइंस ऑफ या इंजरी आ रहा है, वो उसको डाउन प्ले करते हैं, उसको छुपाते हैं ताकि उनको टीम से ना निकाला जाए, एंड दैट इन द एंड बिकम्स gets to a point where that niggle turns into a more serious injury. इसके बहुत सिंपल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो अगर आपको ये पता है कि मेरी एक जगह पे जॉब लगी हुई है, ठीक है, एंड आपकी ब्रेड एंड बटर वो है, आप ये क्रिकेट जो है ना वो कोई चैरिटी के लिए नहीं खेलता, ये उनकी ब्रेड एंड बटर है, ठीक है. जिस तरह अगर हम ये शो पे कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ब्रेड एंड बटर है, ठीक है. अब वो आता है, वो टीम में जाता है, डोमेस्टिक खेल के जाता है, जब वो ऊपर जाता है उसको पता है अगर मुझे इंजरी होगी, मैं फाइनेंशियली हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी. द ड्रॉप फ्रॉम अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टू अ डोमेस्टिक प्लेयर इज़ सो ह्यूज के उसके बाद आपका किचन घर का चलना बिकम्स एन इशू एज वेल. येस, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, आई एम नॉट सेइंग दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड, बट अगर आप compete करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया से, बिग 3 से, तो आप उनके करीब भी नहीं आते. यू आर नॉट इवन 20% ऑफ व्हाट दे पे देयर डोमेस्टिक प्लेयर्स, एंड दैट्स वाई प्लेयर्स डू नॉट वांट टू से कि भाई हमें ये मसला है. सेकेंडली वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, उसको पता है यार, वो पीछे देखेगा यार हसनैन आया था, हसनैन को इंजरी हुई, हसनैन बिल्कुल सीन से बाहर हो गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया. उससे पहले देखेगा कि जुनैद खान था, उससे पहले देखेगा उमर गुल था. आप जाते जाएं पीछे, तो आप यू विल गो वे बैक टू द 90s ऑफ योर फास्ट बॉलर्स, ठीक है. आपको मोहम्मद अकरम जैसे बॉलर नजर आएंगे हु यू थॉट माइट टेक दोज 200 विकेट्स. आकिब जावेद वाज वन ऑफ देम हु इज नाउ द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान. तो द अमाउंट ऑफ फास्ट बॉलर्स आई कैन लाइक दीज आर टॉप ऑफ माई हेड अगेन, वो इतने ज़्यादा हैं. और इसमें जो हम बात करें ना कि प्रॉब्लम वाई डू दे डू दिस, इस उनकी भी मजबूरी है, एंड ऑन आर पार्ट प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आई फील व्हेन यू आर, जब आप अमीर होते हैं ना, आप जिस तरह कुरैशी साहब अमीर आदमी है, नवाब आदमी है, कुरैशी साहब की अगर जैकेट खराब होगी ना और उनके घर में 3 और जैकेट पड़ी हैं, तो ये कोई और पहनेंगे, इसको ठीक नहीं करवाएंगे. It's not true. और just denying it. Oh yeah. But I get your point कि you have आपके पास है options. भाई, आप कह रहे हो कि ठीक है भाई ये नहीं तो ये ठीक है, एंड देन देयर इज नो कंटिन्यूटी इन योर प्रोसेसेस. कि मैंने एक प्लेयर आइडेंटिफाई किया है तो we look after him. I don't think that happens in Pakistan at all. I think that's a very good point. It's a culture of insecurity. I mean आपके पास जब वो सेफ्टी नेट ही नहीं है, एक प्लेयर को पता ही नहीं, एक तो आपके खास तौर पे प्लेयर ऐसे सेटअप से यू गेट मर्क्यूरियल टैलेंट, वो एकदम लाइमलाइट में आते हैं और एकदम ऐसे लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं कि it's beyond a dream come true for them. So for them to get injured and then to actually go on to somebody and tell them what has happened, knowing what has happened to fast bowlers before them is a problem in itself. But that's where we were talking about earlier as well कि आपकी न्यूट्रिशन से लेके आपकी जो इंजरी मैनेजमेंट है उसकी ना सिर्फ एजुकेशन प्लेयर्स को होनी चाहिए, उसका सेफ्टी नेट होना चाहिए. जब तक वो सेफ्टी नेट आप नहीं डेवलप करेंगे ये थीम चलती रहेगी, क्योंकि जब तक प्लेयर के दिमाग में ये रहेगा कि मेरी इंजरी का मसला है और मैं बाहर जाके उसको रिकवरी नहीं कर सकता, जिस तरह यूनिवर्सिटी में टेन्योर आपको मिल जाता है, ठीक है, मतलब यू नो योर जॉब इज सिक्योर, जब तक आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप अपने एसेट की लुक आफ्टर नहीं कर रहे, यू आर एक्चुअली वांटिंग द एसेट टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ व्हिच इज नेवर गोना बी द केस. अच्छा, आप तीनों से अब ये सवाल है, आप लोग फ्रेंचाइज लेवल पे कैसे ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट यू आर, अगर आपके प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं तो आप उनको वो बैकिंग दे रहे हैं, हाउ आर यू trying to change this mindset जो players में अब बन गया हुआ है? हमारा तो बहुत सिंपल है, you play for us, you don't play for us, your match fees we'll give you the same amount as everyone else is getting, because bench strength is as important as a team that is playing. Usually ये रूल होता है कि मैच फी होती है आपकी, तो आपकी जो सैलरी होती है उसकी परसेंटेज मैच फी होती है, और बाकी जो होता है तो हम लोग ये कहते हैं प्लेयर्स को कि आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, you will still get the money that was promised to you regardless of you playing or not playing. That's number one. Number two, I will not state this myself. I think the best person to ask this question to is Ruman Reis on how Islamabad United looked after him. I am sure Qureshi Saab will talk about Multan Sultans, but Ihsanullah, मेरी उससे personal conversation हुई है. Ihsanullah is very thankful to how Multan Sultans looked after him. So ये कोई rocket science नहीं है, ये teams करती हैं. And someone like Lahore Qalandars, आप देखें कि हारिस रऊफ का जो rise of हारिस रऊफ है, जिस तरह उन्होंने उसको जब वो आया था उसको पहले सबसे पहली चीज़ जो हारिस रऊफ को मिली थी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली थी. अगर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती वो क्यों टेप बॉल खेल के हार्ड बॉल खेलता? उन्होंने सबसे पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि डोंट वरी, वी विल फाइनेंशियली प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी रोजी रोटी नहीं बंद होगी. तो इसलिए ही बिकेम द प्लेयर दैट ही बिकेम. सो नंबर वन चीज़ है, कोई फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होगा ना तो आप उसको किसी चीज़ पर जज नहीं कर सकते. पहले सिक्योरिटी दें, पहले आप उसको पूरी वो सहूलतें दें जो बाकी दुनिया के
टीम्स अपने फास्ट बॉलर्स को देनी है, फिर उसको कहें हाँ भाई बता तूने 200 विकेटें क्यों नहीं दी। अगर आप नहीं दे रहे ना तो फिर पूछो भी ना। और इसमें आई थिंक जैसे आपने किया, अब इफ वी लुक एट समवन लाइक शाहीन शाह अफरीदी, I think, you know, one of the most incredible talents to come out of Pakistan. But also you see him pushing himself through and playing and talking about Shaheen or Naseem talking about the fact that they're scared about losing their place. Players like that should not be worried about losing their place in the team. Agar wo soch rahe hain, to just imagine what a young player coming through is having to go through. Absolutely, and I think उन खास तौर पे इन दोनों की जो मिसाल है, the way when they were injured, I mean Shaheen was injured, he was still traveling with the team. I mean there's so many शाहीन शाह stories. अफरीदी का केस तो अभी सबसे फ्रेश है ना, जो कि हमें याद भी है, एंड अ लॉट ऑफ द प्ले, आई थिंक लास्ट एशिया कप में भी देयर वाज सम, आई थिंक आई वाज इंटरव्यूइंग सकलैन मुश्ताक जो उस टाइम पे कोच थे, एंड ही शेयर्ड दिस कि सम प्लेयर्स जो एशिया कप में जिनको निगल्स थे बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, वो जो एक हाइब्रिड मॉडल था, एंड यू नो उसकी वजह से प्लेयर्स गॉट एग्जॉस्टेड एंड देन दोज निगल्स टर्न्ड इनटू समथिंग सीरियस, जो कि बाद में आपने उनको ठीक तरह एड्रेस नहीं किया। तो कभी कभी ये चीज़ें मैनेजमेंट और जो ये सारे लॉजिस्टिक्स देख रहे होते हैं उनको भी ये सोचनी चाहिए कि एक फास्ट बॉलर स्पेशली कितना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है रेस्ट एंड यू नो थोड़ा रिचार्ज करना, थोड़ा डाउन टाइम। अगर आप Absolutely, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो there was a talk about how the West Indies used to give the first class seats to their fast bowlers. Their captain or their batsman would Is that give right? it. Yes, Yeah. they would say that we are prioritizing, if there's a limited number of first class seats, the fast bowlers will use it because they are our primary weapon. If you don't treat them like the asset that they are, you're not going to have the success. By the way, Pakistan also does this. If there are, अभी भी ये होता है कि अगर आपकी सीट्स कम हो बिजनेस क्लास वगैरह के अंदर तो फास्ट बॉलर्स गेट प्रेफरेंस। Good. I did not know that. Yeah. I did not know they that. need a longer leg space too, to be honest. that's They're fair, taller guys that's fair. generally. But जो आपने बात की workload management की, that's so on point because देखिए 2022 में पाकिस्तान 288 days they were either traveling in a camp or playing for Pakistan, and 301 days you know he's worked with the Pakistan team, so he shared this you know stats with me, and I was like mind boggling कि 301 दिन 2023 में 356 दिनों में पाकिस्तानी टीम यहाँ ट्रैवल कर रही है, यहाँ और रोड पे है, यहाँ ट्रेन कर रही है। तो ऑब्वियसली जो आपने बात की कि ये चीज़ें बैक इन द 80s उस तरह थी नहीं, आपको टाइम मिलता था, रेस्ट मिलता था, इतना टाइम होता था इनफैक्ट कि आप दूसरे मुल्कों में जाके वार्म अप मैचेस खेल रहे होते थे। अब आप यू अराइव देयर 2 दिन बाद आपने you have to start playing right away. That's an unbelievable stat. ये stat सुन के मैं थक गई हूँ, मुझे चाहिए ब्रेक, क्योंकि मैं लूँगी थोड़ी सी कॉफ़ी और आप लोग हमें ज्वाइन करें। थोड़ी देर के बाद यही डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक। बात हो रही है कि पाकिस्तान ने 1980s के बाद कोई ऐसा फास्ट बॉलर क्यों नहीं प्रोड्यूस किया जिन्होंने 200 प्लस टेस्ट विकेट्स लिए हों। ये स्टैट शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू है, शायद सरप्राइजिंग भी हो। हमारा गेस्ट पैनल हमें दे ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि क्या रीजंस हैं, क्या वो लैक ऑफ टेस्ट मैचेस है जो पाकिस्तान खेलता है, या क्या वो डिवीजन ऑफ टेस्ट मैचेस है, होम अवे कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं मिल रही फास्ट बॉलर्स को, या उनको ठीक तरह मैनेज नहीं किया जा रहा, इंजरीज हो रही हैं। आई मीन देयर इज़ अ होल एरे ऑफ रीजंस एंड वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हम ये चीज़ थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ रॉ टैलेंट व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स इन पाकिस्तान। अभी रेहान आपके साथ भी मैं ये लिस्ट शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमने थोड़ा सा कंपैरिजन ग्राफ बनाया है बिटवीन सम ऑफ पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स एंड ऑफ कोर्स जेम्स एंडरसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, माय फेवरेट फास्ट बॉलर, जिनकी अभी तक हम उनको जिस फिटनेस पे देख रहे हैं, जिस रिदम में देखते हैं, इट्स अनबिलीवेबल हाउ लॉन्ग ही हैज़ प्लेड एंड 690 के करीब इनकी टेस्ट विकेट्स हैं, विच इज़ अनदर माइंड बॉगलिंग स्टैट। बट ये आपके स्क्रीन्स पे कंपैरिजन है। रेहान, हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये किस चीज़ का कंपैरिजन है एंड व्हाट डू वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। अगर जेम्स एंडरसन पाकिस्तानी होते हुए आपके फेवरेट बॉलर तो 20 से ज़्यादा टेस्ट मैच ना खेलते, और ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करेगा कि वो क्यों 20 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस ना खेलते पाकिस्तान में।
नंबर वन ये है कि ये जो मैचेस आप देख रहे हैं 42 मैचेस, उमर गुल ने 42 मैचेस खेले अपने पूरे करियर के अंदर अगेंस्ट टॉप 8 टीम्स. आफ्टर 42 मैचेस जेम्स एंडरसन सेम स्टेज के ऊपर, उमर गुल हैड अ बेटर एवरेज. नसीम शाह बॉटम ऑफ द टेबल आ जाए, 17 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट टॉप 8 टीम्स उसने खेले हैं. जेम्स एंडरसन इन हिज फर्स्ट 17 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट द टॉप 8 टीम्स एवरेज नियरली 42. सो नसीम की उससे बेहतर एवरेज है. इस इंटायर लिस्ट के अंदर एट द सेम स्टेज ऑफ देयर करियर्स ऑल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैव अ बेटर एवरेज देन जेम्स एंडरसन other than Mohammad Sami. That's the only exception here. और अगर ये I can guarantee you कि अगर इन स्टैट्स के साथ जेम्स एंडरसन पाकिस्तानी होते तो वो आई थिंक 20 या 15 टेस्ट मैचेस ना खेलते. और दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बेचारे खेले हैं ना, ये ऐसी पिचेस पे खेले हैं जिन्होंने जिधर 5-5 साल फास्ट बॉलर्स बेचारे डेनिस लिली जैसे लोग कहते हैं हमारी कब्रें बनाओ यहाँ पे, वो ऐसी पिचेस के ऊपर उन्होंने आउट किए हैं और वो खेले हैं ऐसी पिचेस के ऊपर विद द बॉल swung and everything. So it looks cool, he's taken 690 plus wickets and all of that and played so many. But just to give you an example कि ये मैचेस जो आप देख रहे हैं, अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इसलिए 200 विकेट नहीं लेते कि हम एक मैच के बाद कहते हैं नसीम शाह तो फारिग है यार, मज़ा नहीं आया, शाहीन की पेस गिर गई है, 2 छक्के पड़ गए, तो या अगर खत्म. कोई नहीं, ये क्रिटिसिज्म तो बहुत अर्ली ऑन फेस करना पड़ता है. लेकिन आई थिंक दुनिया में जहाँ पे भी क्रिकेट खेली जा रही है, कोई भी स्पोर्ट आप ले लें, क्रिटिसिज्म फैंस की तरफ से हमेशा रहा है. बिकॉज फैंस अगर व्यूअर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको वो म्यूज़िक सुनना पड़ता है. लेकिन दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप वो म्यूज़िक सुन के दैट विल डिक्टेट योर सिलेक्शन स्ट्रैटेजी एंड दैट विल इफेक्ट द पीपल हु यू ड्रॉप, हु यू सेलेक्ट, हु यू जस्ट make them stay on the bench. I think there's a lot of culture now, even amongst players, how to handle social media. I think that needs to go towards the organization as a general as well across the world, not just us. I mean, ये खास तौर पे उमर गुल की बात कर लें अगर आप, और देखें एक इसमें 2-3 चीज़ें हाईलाइट होती हैं. नंबर 1 एक चीज़ ये हाईलाइट होती है कि जेम्स एंडरसन 42 मैचेस के बाद भी England banked on him to become one of their premium fast bowlers, who he became to become one of the legends of the game, जिस तरह आपने बात की. और उसकी वजह क्या है कि they were consistent with him, they backed him, regardless of his average, he was somebody they were investing on for the longer run. इसका क्या मतलब हुआ? उमर गुल की मिसाल लेते हैं. 2006 से 2013 जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद किया, इस दौरान उमर गुल ने 40 टेस्ट मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान 88 टेस्ट मैचेस खेले. So why couldn't he represent Pakistan in more of the test matches? It was either because of injury, it was either because he was being dropped or any other reason. Having a better average than James Anderson, and James Anderson is bowling in English conditions. आपने उनकी विकेट्स के टोटल की बात की, 188 टेस्ट मैचेस वो खेले हैं जिसमें से 104 इंग्लैंड में खेले हैं. फर्स्ट थिंग यू थिंक अबाउट इंग्लैंड इज सीमिंग कंडीशन, स्विंग होना है गेंद में, खास तौर पे जेम्स एंडरसन के हाथ से. तो ही डिड नॉट बिकम जेम्स एंडरसन बाय चांस, ही वाज एक्चुअली गिवन दैट प्लेटफॉर्म, और टू रीच दैट स्टेज ऑफ बीइंग अ पिनिकल ऑफ योर स्पोर्ट, आपको वो मौका मिलता है तो आप उतना डेवलप करते हैं. एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको ये माइलस्टोन्स उन्होंने ये अचीव किया, उनके पीछे एक प्लानिंग थी बोर्ड की, उनके पूरे स्ट्रक्चर को भी इस चीज़ में आप कितना देते हैं हसन क्रेडिट कि वहाँ का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली ही हैज़ loads and loads of first class experience playing domestic in England as well, and he continues to play. And I mean that's another debate altogether कि वो उनको और खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था as in the English team. लेकिन despite all of that, how much does the domestic structure help a fast bowler play that longer, they have a longer career? So देखें इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं. पहली बात तो है when England introduced central contracts, it was to take away the burden from the counties and allow England to dictate कि वो players कितना खेलेंगे. अब अगर एक player को ज़रूरत थी खेलने के लिए, they were no longer, the counties were not the ones paying the player, England was paying the player, and then England was picking and choosing their games. Hassan makes a very good point कि 104 मैचेस उन्होंने होम पे खेले. A lot of people felt that he was not at his best in Australia. England didn't drop him. They took him when they won the series in India. He played all the games. He may not have been taking all the wickets, but they backed him. They backed his experience. They backed his ability to dry up the runs. There's an incredible wicket where he gets Sachin Tendulkar out. They backed the player. They didn't. वही बात आ जाती है कि आप उमर गुल को is playing half those number of test matches that you're playing, and James Anderson is playing almost all of those. So that is back. Now we come back to the domestic system की जो आप बात करती हैं कि उससे कितना फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है.
when again हमने अभी recently break से पहले भी बात की थी कि जब एक security होती है player को, security of their place, security that they're valued, अगर हम इसी point से थोड़ा सा एक point पे आए, all the Pakistani fast bowlers over the years that we have been playing domestic cricket who have taken more than 90 wickets in a domestic season and then played for Pakistan, no single bowler played more than 9 test matches. No Pakistani fast bowler who took more than 90 wickets in a season played more than 9 test matches. In some of those cases, the highest number of wickets is Suhail Khan, 27 wickets with 9 test matches, but he had a 6-year gap between his first 2 matches and then the next matches that he played. Where is the consistency of selection? No test matches. नौ से ज़्यादा कोई खेला ही नहीं है जिसने 91 विकेट्स डोमेस्टिक क्रिकेट में ली हों. मतलब कि आपका एक स्ट्रक्चर है और आप उसकी क्रेडिबिलिटी को भी इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर क्या वजह? या तो क्वालिटी फिर ठीक नहीं है डोमेस्टिक की कि वो चीज़ आप ट्रांसलेट ही नहीं कर रहे हैं. जो बंदा पाकिस्तान का एक पूरा डोमेस्टिक काज़म ट्रॉफी का वो खेले ना, जब सुहेल खान खेलते थे तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि इतने मैच होते थे कि वो बेचारा फास्ट बॉलर तब तक वो ख़त्म हो चुका होता था. फिर हम कहते हैं जी ये इंजर होके क्यों आते हैं. अब मैं आपको करंट पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ. आप चैंपियंस कप से लेके अगले साल डोमेस्टिक चैंपियंस कप तक देयर इज़ नो ब्रेक. दीज गाइज आर प्लेइंग नॉन स्टॉप क्रिकेट एंड देन द नेक्स्ट सीजन स्टार्ट्स 2 to 3 weeks आफ्टर दैट, विच मीन्स देयर इज़ नो ब्रेक. बैटर इतना लंबा सीजन सर्वाइव नहीं कर सकता, बॉलर तो दूर की बात है. और फास्ट बॉलर ऑन एवरेज जो फास्ट बॉलर होता है ना, उसको अगर वो सीजन में 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल जाए ना, तो आप समझते हो कि यार ये या तो ये रिटायरमेंट के करीब आ रहा है कि हम इसको बेसिकली ये सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलेगा. Is Mohammad Ali Daisy one of these examples, recent examples? खुरम को आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हम गए तो उसके उधर जाके उसको इंजरी होगी. आपको पता है खुरम प्लेड 8 मैचेस इन 10 days डोमेस्टिक के 8 मैचेस इन 10 days. तो आपने उसको इतनी, और फिर आपने कहा नहीं वो तो T20 है 4 ओवर करवाने हैं. और हम एक तरफ वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं एंड देन दिस इज नहीं वर्कलोड, यही तो प्रॉब्लम है. वर्कलोड मैनेजमेंट हम कह रहे हैं ना इंटरनेशनल पे हो, हम नीचे नहीं कर रहे. और दूसरा ये एक ना पाकिस्तान में बहुत एक नैरेटिव है जो कि बहुत आसान है. मैं बता, किसी से पूछेंगे ना वो आपको कहेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक नहीं खेलेगा ये बॉलर नहीं बनेगा. फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक ये नहीं खेलेगा ये बॉलर नहीं बनेगा. अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली. मैं इन जो भी ये बोलता है उनसे मेरा एक सवाल है कि आप पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के मुल्क जो कर रहे हैं ना, एक दफ़ा उसको देख लें. पैट कमिंस ने जब से अपना डेब्यू किया है और अभी तक वो 8 फर्स्ट क्लास मैच खेला है सिर्फ, और 70 टेस्ट मैच खेल गया उसके दौरान वो, तो वो नहीं खेल रहा डोमेस्टिक. जेम्स एंडरसन की आपने बात की कि जेम्स एंडरसन ये जब द काउंटीज शिफ्टेड दिस एंटायर मॉडल इंग्लैंड स्टार्टेड गिविंग नेशनल, तो उन्होंने कहा भाई तू ना खेल इतने डोमेस्टिक के मैचेस, क्यों तू अपनी बॉडी ज़ाया कर रहा है. तो प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम कहेंगे यार अब नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी जब वापस डोमेस्टिक में जाएंगे ना, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे यार टू गेट बैक इन फॉर्म तो 2 या 3 मैच खेल ले, बाकी मैचेस तो रेस्ट करिए. हम उसको कहेंगे पूरा सीजन खेल, टॉप विकेट टेकर बन, टॉप कर, दिस वर्ड टॉप कर, और फिर हम तुझे देखेंगे. क्यों भाई? पैरामीटर्स तो इवॉल्व हुए ही नहीं है ऐसा लगता है टू गेज द एफिशिएंसी ऑफ अ फास्ट बॉलर. अच्छा एक और क्योंकि सवाल हम अभी बात करें वर्कलोड की, और हम कंपैरिजन हमने डेकेड बाय डेकेड कंपैरिजन भी किया और हमने स्टैट्स भी अभी आपके साथ शेयर किए हैं. बट एक और सवाल अब इसी से लिंक्ड है मेरा कि हाउ मच इज़ लीग क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट contributing to this problem जिसमें फास्ट बॉलर्स इंजर हो रहे हैं ज़्यादा एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय लॉन्गर करियर्स. बिकॉज इस टाइम पे हम वकार यूनिस की बात करें या इमरान खान की बात करें या वसीम अकरम की बात करें, उस लिस्ट में उस टाइम पे ऑफ कोर्स देयर वर ओनली 2 formats being played and then there was also not this much and this volume of franchise cricket being played around the world. So players had more downtime, they had more free time and then they would play county जब भी उनको मौका मिले. लेकिन अब इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है कि जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे प्लेयर्स, जो आपके प्रीमियर प्लेयर्स हैं, इफ़ दे आर नॉट इंगेज्ड विद एनी डोमेस्टिक सीजन दे आर ऑब्वियसली प्लेइंग इन लीग्स. और अब ये लीग क्रिकेट को थोड़ा मैनेज करने के लिए NOCs को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन फिर भी लीग क्रिकेट अच्छा खासा एक स्ट्रेनुअस एक्सपीरियंस ज़रूर होता है फॉर फास्ट बॉलर्स. आप तीनों से सवाल है हाउ मच इज दिस थिंग कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंजरीज? आई थिंक जिस तरह दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. पैट कमिंस की हम मिसाल ले लेते हैं. पैट कमिंस इज समबडी जिसने ILT20 भी खेला, जो IPL भी खेला, जो MCL जाके अमेरिका में भी खेल रहा है, बट देन ही कम्स बैक एंड प्लेज द वर्ल्ड कप एज वेल, विंस द वर्ल्ड कप. रेहान ने बात की 2011 से अभी तक 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है. पॉइंट बीइंग बोर्ड और प्लेयर के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्कलोड जो आप मैनेज कर सकते हो, एंड देव गिवन देम फ्रीडम टू देन चूज एंड डिसाइड बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि प्लेयर आने वाली सीरीज में फिट भी रहे,
जिस तरह अभी हुआ है, आपने T20s में देखा तीनों आपके प्रीमियम उनके फास्ट बॉलर स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, उन्होंने रेस्ट कराया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज आ रही है इंडिया के खिलाफ, दे वर लाइक वी डोंट नीड टू प्ले T20Is, सेकंड ODI तक दैट्स गुड इनफ. सो इट्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. इंग्लिश बोर्ड भी यही करता है, जेसन रॉय के साथ जिस तरह उन्होंने किया या बाकी प्लेयर्स के साथ करता है कि जब आपकी लीग की कमिटमेंट्स आ रही हैं, दे डिसाइड दैट ऑन अ केस बाय केस बेसिस rather than painting the whole canvas with one color, and I think that's how it should be. तो इंडिविजुअली जब आप उन्हें एसेट देखना शुरू करेंगे और उन्हें वैसे मैनेज करना शुरू करेंगे, खास तौर पे आपके फास्ट बॉलर्स को, तब आई थिंक वो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे और आप ये गेज कर सकते हैं कि हाँ यार, नसीम शाह में हाउ मेनी नंबर ऑफ ओवर्स इन अ ईयर कैन हिज बॉडी टेक फॉर द नेक्स्ट 15 years, rather than saying जो रेहान बात कर रहे हैं. और डोमेस्टिक की तो अगर हम बात करें, लाइक समटाइम्स देयर आर 8 टीम्स, समटाइम्स देयर आर 18 नसीम टीम्स. शाह में तो लास्ट ईयर भी ये बहुत बड़ा ये इशू बना था जब एशिया कप में जब उनको श्रीलंका में खेलते हुए लीग में कुछ उनको इंजरी आ गई थी या डाइव करते हुए या जो भी उनका रीज़न था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स वी कुड नॉट हैव नसीम शाह इन द वर्ल्ड कप. और उस टाइम पे भी देयर वाज सो मच क्रिटिसिज्म कि व्हाई वाज ही अलाउड टू प्ले इन दैट लीग. I just have one इस पे overall it's a question for all three of you. You guys all agree that Australia is a better test team than Pakistan, right? Yeah. Sure. The last test match that Australia played, 8 out of their 11 players had played more than 100 T20s in their careers. पाकिस्तान की जो लास्ट टेस्ट टीम खेली है उसमें 3 थे, तो इसका मतलब है आपको T20 शायद ज़्यादा खेलनी चाहिए. And that's basically what I'm saying is कि वहाँ पे क्या होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट पता है इस तरह नहीं होती कि आप एक प्लेयर को कह रहे हो यार तुझे NOC नहीं देनी, यू विल नॉट गेट एन NOC, एंड एट द सेम टाइम तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ पे जाके लीग में T20 नहीं खेलोगे लेकिन ये डोमेस्टिक का T20 टूर्नामेंट खेल लो. दैट्स नॉट वर्कलोड मैनेजमेंट. अगर इफ़ यू वांट टू मैनेज दैट वर्कलोड तो फिर उधर की NOC भी ना दो, इधर भी ना खिलाओ, इधर भी सको जी रेस्ट करे. एंड देन वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है इसमें, लीग क्रिकेट को मिस करने का, उसकी भी कॉम्पेंसेशन चाहिए. फिर देयर आर प्लेयर यूनियंस. ऑस्ट्रेलिया हैज अ प्लेयर यूनियन. ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर यूनियन के पास जितनी अथॉरिटी है उनका तो क्रिकेट बोर्ड सांस नहीं लेता प्लेयर यूनियन से पूछे बगैर, बिकॉज उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं. दे इक्वल पे. मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बात लगी है जो उनकी विमेंस का स्ट्रक्चर आया है इसके अंदर. इट्स अमेजिंग एंड हाउ द मेन एंड विमेन साइड ऑफ इट हैव कंबाइंड टू टेक ऑन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो पैसे कमा रहा है प्लेयर के स्टारडम से. ठीक है, it's not the other way around. Absolutely. In every sport in the world has evolved where your players are your superstars who are bringing in money. ठीक है, जब आप किसी बिलबोर्ड के ऊपर किसी आप बोर्ड का लोगो अकेले लगाएंगे उसको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा. आप शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम की तस्वीर लगाएंगे उसको स्पॉन्सर मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा. तो आप अपने प्लेयर्स को जितना बढ़ाएंगे, जितना चढ़ाएंगे उतना आपको फ़ायदा है उसका, जितना आप उनको एक्सपोजर देंगे उतना फ़ायदा है. सबसे मेजर बात यह है कि आपके बोर्ड से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं. हम अक्सर कहते हैं जी हम अपनी दफ़ा ये रो रहे होते हैं कि PSL में बिग नेम प्लेयर्स नहीं आते बिग, और फिर आप क्या करते हैं कि आप एक प्लेयर को NOC देते हैं कि ठीक है भाई तू जाके CPL खेला, वो फ्लाइट में बैठने लगता है तो कहते हैं परसों वापस आ जाए यार कैंप लग रहा है. तो वो अगली जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी कहता है कि भाई हमारी लीग तबाह हो रही है इससे. ये किसके साथ हुआ था? ये कोई 8-9 अभी ये रिसेंटली भी हुआ है. खैर I can't name players, but sure. He who must not be named. They who must not be named. Yeah, they. It's like a lot of cases. In fact, मैं ये बता देता हूँ कि कैरिबियन प्रीमियर लीग 2017-18 के अंदर हो रही थी. उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2017-18 की बात है. उसके दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स को कैंप के लिए वापस बुलाया था. It wasn't even a series. और फिर वो CPL की टीम ने कहा भाई हम नहीं लेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स. And you lost on connection with one cricket board. You've lost on connection with the Emirates Cricket Board जो कि आपका बहुत मेजर पार्टनर था, because ILT20 के लिए NOCs became a huge issue. आपने अपने ताल्लुकात बोर्ड्स के साथ ख़राब किए. आप अभी इंग्लैंड से बात करें कि भाई ठीक है 100 के लिए हम अपने प्लेयर्स तुम्हें देंगे, तुम PSL के लिए अपने प्लेयर्स हमें दे दो. बिग बैश से जाके बात करो कि भाई वील गिव यू आर प्लेयर्स, यू गिव अस आर प्लेयर्स. ये कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है, पाकिस्तान इज़ स्टिल द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट लवर्स आफ्टर इंडिया. और डायस्पोरा वाइज भी पाकिस्तान प्लेज अ ह्यूज रोल. अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं ना, उसको ज़्यादा लोग देखने आएंगे, पैट कमिंस को कम लोग देखने आएंगे, इतने आपके फैंस हैं. दैट इज़ द ट्रूथ. पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत के आता है, एयरपोर्ट से उसको लेने नहीं आता, वो एक खाने पे जाता है जिसके बाद वो मेडल पहन के बैठा होता है, और मेडल पहन के बैठा होता है, ही इज एक्सपेक्टिंग समवन टू से हाई टू हिम, एंड देन ही गोज आउट एंड ही टॉक्स अबाउट इट कि भाई हमें तो किसी ने पहचाना ही नहीं. There's videos of people being asked who is the Australian captain. यहाँ पे क्रिकेटर आप मुझे बता दें. बल्कि आप ही उस दिन शो पे कॉलिन मनरो का भी एग्जांपल दे रहे थे कि somebody like him when he comes to Pakistan, back home he might not be such a big deal, but when he comes to Pakistan, he put it really well by the way. He said मेरे अपने बच्चे मेरा नाम नहीं चैंट करते, पाकिस्तान में क्राउड चैंट करता है.
तो I mean that's you can gauge उस तरह के हम कितने ज़्यादा respect भी देते हैं and then how crazy we are about these players. No, absolutely. I remember with we were in Pearl Continental walking, and someone came up to Andy Flower, and shook his hand, and Andy said, "You know who I am?" He said, "Yeah, you're a great player." And then he looked at me and said, he was a great player. I said, "Thank you for telling me." But I mean, even players who retired many years ago, our fans know about them, and they love them, and they feel that. It's a very valid point Rehan is making कि देखें workload management is not about just giving or not giving NOCs. अगर आप workload management पे जाते हैं in the 90s जब हम बात कर रहे थे कि players county cricket खेलते थे, Warwickshire had Alan Donald and South African Cricket Board was monitoring how many overs he bowled in a season. I'm talking about 97, 98 में ये हो रहा था. आपके खिलाड़ी खेल रहे थे. It's not just a very good point Hassan made. Are you going to see which every player is different. You cannot have one policy which covers Shaheen, Haris and Naseem all together. Are you looking at their workload management differently? Are you understanding what their body cannot take? The fact about Pat Cummins playing 8 first-class games and playing 70 odd test matches completely destroys the notion that you need to play only first-class cricket to be a bowler. जहाँ तक franchises की बात आती है, franchises have players for a very limited amount of time. आप तो 2 से ज़्यादा लीग किसी को खेलने भी नहीं देते. There are other countries. Look at the workload management England had right now. With after every test match, despite needing to win the series, they changed the fast bowlers. अच्छा क्विकली बिकॉज हमने ये डिस्कशन शुरू की थी टेस्ट मैचेस से और हमने इस बारे में भी बात की कि फास्ट बॉलर्स को उतने टेस्ट मैचेस नहीं मिलते एंड वी टॉक्ड अबाउट कि ये गलती कहाँ पे हो रही है और किससे हो रही है. बट अगर ऑन द अदर हैंड आपके फास्ट बॉलर्स खुद रिलक्टेंट हैं टू प्ले टेस्ट क्रिकेट and at a certain point in their careers when they want to make sure कि उनकी health, उनकी fitness, longevity career की बरकरार रहे, जिस तरह कुछ अर्सा पहले हारिस रऊफ का एग्जांपल आप ले लें कि उन्होंने टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो था उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलना चाहूँगा बिकॉज उनको जो भी इंजरी कंसर्न्स थे. इस तरह की डू यू थिंक देयर विल बी मोर केसेस लाइक दिस इन द फ्यूचर वेयर fast bowlers especially will decide to opt out and in that case who do you blame then? फिर तो आपके players को नहीं मिल रहे टेस्ट मैचेस, फिर आप फोर्सफुली खिलाएंगे, आप फिर उनको जिस तरह उनके साथ हुआ बाद में उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू हुआ. सो हाउ डू यू नेविगेट दिस? पैसे दे दें उनको, कहें कि टेस्ट मैच के जो प्लेयर्स होंगे उनकी सैलरी डबल होगी, आपको लीग खेलने की जरूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ें ना खेलो, पैसे दे दें. और ये इंसेंटिवाइज आई थिंक इंडिया में ये चीज़ हो रही है, इंडिया में भी होता है. Many countries are doing this. ये जो अक्सर लोग पॉइंट रेस करते हैं कि जेम्स एंडरसन को चेक करो, उसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और उसने लीग क्रिकेट नहीं खेली. FYI जेम्स एंडरसन शुरू में लीग्स में अपने नाम डालता था, उसको कोई पिक नहीं करता था, नंबर 1. नंबर 2 उसको इतने पैसे मिलते थे कि उसको लीग्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो अगर आप इंसेंटिवाइज उस तरह करते हैं. और दूसरा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, अभी रिसेंटली आप ट्रेंट बोल्ट को देख लें कि द डिसीजन दैट ही इज टेकन, वो छोड़ दें. अब तो ऐसे प्लेयर आने लग गए हैं, आई फॉरगेट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले थे ओपनर उनके, विल स्मीड ने तो आई थिंक उसने कहा था कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम रेड बॉल एंड वनडे क्रिकेट, आई एम ओनली गोइंग टू प्ले T20 क्रिकेट. सो दैट्स द फ्यूचर बिकॉज इम्पॉसिबल है 3 फॉर्मेट खेलना, इम्पॉसिबल है. इवेंचुअली वन फॉर्मेट विल हैव टू नॉट डाई बट नॉट एग्जिस्ट एज मच. आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक रोहर जी जिस तरह आपने कहा, मेरी नज़र में अब आपको स्पेशलिस्ट चाहिए पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए. तो अगर आप टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट चाहते हैं जो आपको 200 विकेट्स लेके दें rather than be somebody who's doing the T20, ODI and the test thing all together, then you need to create them specialists. उनको फिर आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देनी है और उस सिक्योरिटी के साथ साथ अगर उनकी ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि देखें ये लीग कल्चर इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये वो मिसालें भरी पड़ी हैं. केविन पीटरसन से जब ये लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई, डेविड वार्नर से, अब आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं जिस तरह वो CPL में खेला. यू ग्रो एज अ प्लेयर लीप्स एंड बाउंड्स जब आप लीग्स जाके खेलते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो कंपटीशन में नहीं होते आपके साथ, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू ग्रो एज वेल एंड देन यू आस्क देम क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. आप खुल के उनसे बात करते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, आप सर्टन टाइप ऑफ बॉलर्स को खेलना जानते हैं, वो आपकी टीममेट्स ही होते हैं, आपके ऑपोजिशन भी नहीं होते. दे टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक स्पेशलिस्ट बनाना और उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें देना एंड देन अलाउ देम टू इवन ग्रो फ्रॉम देयर ऑन इन वेयर दे कैन मैनेज देयर वर्कलोड इज द वे फॉरवर्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट. प्लस शान मसूद तो ये कह ही चुके हैं कि गिव अस मोर टेस्ट क्रिकेट भाई, जब तक हमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट आप नहीं देंगे. और आपने भी ये जो बात अभी की कि यू नो
फॉर्मेट स्पेशलिस्ट, ये आई थिंक एक अलग ही एक एपिसोड हो सकता है, यू नो हम इस पे प्रॉपर बात कर सकते हैं और इसको मैनेज कैसे करना है. अनफॉर्चुनेटली अब हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, बट बिफोर वी रैप अप ऑफ कोर्स व्यूअर्स को एक फ्रेश रिमाइंडर हम दे दें कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे वाइट बॉल टूर जो है वो अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है. एंड ODI कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन्स पे है. 3 ODIs खेले जाएंगे बुलावायों में, एंड दिस इज़ व्हाट द सीरीज़ कार्ड लुक्स लाइक 24th, 26th एंड 28th नवंबर 2024. एंड उसके बाद जी 3 T20s खेले जाएंगे बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे. ये भी बुलावायों में खेले जाएंगे 1st December, 3rd December and 5th December. And you will be able to catch all of this action ऑन PTV स्पोर्ट्स. हमने अपने शो में भी बिल्डअप किया, हमने स्क्वाड को भी एनालाइज किया, एंड वी विल ऑफ कोर्स कीप डूइंग दैट एज द सीरीज़ गोज़ ऑन. बट हमने ओवरऑल रेलेवेंस की जेंटलमैन बात की और हमने स्क्वाड को भी देखा कि हमारे पास क्या प्रोमिसेस हैं अभी इन दिस अपकमिंग सीरीज़. बट सिंस कुरैशी साहब यू जॉइंड अस टुडे, वी डिड टॉक अबाउट द स्क्वाड्स यस्टरडे. आपकी नज़र में What do we expect from this Zimbabwe tour? पहले अगर आप वनडे सीरीज़ की बात करें और हमारी वनडे टीम की recent success against Australia, उस momentum को how do we carry that forward in Zimbabwe? I think by something Aqib Javed said, by staying settled, by staying true to what you want to see with a long-term focus on the Champions Trophy. So don't make too many changes, stick to what's working for you. Try to, you know, give opportunities without changing too much. I'd like to see that as far as the one days are concerned. कि आपका जो भी आपका जो methodology आपने adopt करनी है उसी के साथ आप चलें. Don't tinker too much. Give the players an opportunity to express themselves, but within a framework that you want to see going forward. Then coming into the T20s, you know, after that, I mean, it's an opportunity to do something. Do the opposite. It is important to do the opposite because again हमने कितनी दफ़ा ये बात की कि आप अपनी bench strength को test ही नहीं करते. Bilateral series. Who gives the importance to bilateral series? All the teams that are winning World Cups and doing well, they are focused on the long term. Give an opportunity to your young players. Give them an opportunity to go out and express themselves. Again, with the most important thing, without a fear of failure. जिस दिन पाकिस्तान फेयर ऑफ फेलियर हटा देगा ना, पाकिस्तान विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव एंड गो. आई थिंक द बेस्ट पाकिस्तानी टीम्स ऑलवेज इग्नोर फेयर ऑफ फेलियर होगा. पाकिस्तान में आप बड़े नहीं हो सकते, खेल नहीं सकते, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते विदाउट फेयर ऑफ फेलियर, बट दे इग्नोर्ड इट. यू हैव टू अलाउ देम ऑल्सो टू गो अहेड एंड इग्नोर इट. जस्ट मूव ऑन विद इट. Is it easy to ignore? Yeah. Why do you think the term Pakistan, when Pakistan corner tigers term, ये कहाँ से आती है? वो इधर से आती है कि वो आपका ऑप्शन नहीं बचता because उसके you have nothing to lose, and when you have nothing to lose, then Pakistan plays fieldless cricket because you can't play with fear after that. और उसके बाद Pakistan turns into a different team. It's always that last match before the group stage exit. In a World Cup, in an ICC tournament, where you see the best version. Best version. और मेरी तो जिंदगी की ट्रेजेडी ये है कि 2003 में बारिश होगी जिम्बाब्वे वाले मैच में कि किसी तरह नेट रन रेट हमारा बेहतर हो जाए तो हम क्वालिफाई करते हैं. 2019 के वर्ल्ड कप में आप दुआ कर रहे हो कि उधर ये हो जाए वो हो जाए. फिर पाकिस्तान टीम के साथ ही मैं था कि न्यूजीलैंड किसी तरह मैच हार जाए. तो ये तो आई मीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी है. और इसलिए आई थिंक फैंस को भी अब ये एक कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यकीन आ गया है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा. यू नो वी विल बी थ्रू. कोई ना कोई कुदरत का निजाम ऐसा हो जाएगा. आई थिंक वो शायद हम एज फैंस भी उस प्रेशर ऑफ सिचुएशन को इतना एंजॉय करते हैं. हम कहते हैं किसी तरह हम पहले उस सिचुएशन में आ जाए ताकि उनसे भी प्रेशर हट जाए, हमसे भी हट जाए. फरिश्ते नजर आते हैं और ये सब चीजें भी. We just don't want to be the dominant champions that win 8 or 9 games in a row. We want to scrape through. मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब आप कोई मूवी बना रहे होते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया की 2003 पे कोई अच्छी मूवी नहीं बना सकता. ठीक है, मूवी बन सकती है पाकिस्तान की 92 की विन के ऊपर, 2009 की विन के ऊपर, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की. आप इंडिया से हारे हो, सब तबाह बर्बाद हो गया है और फिर आप ट्रॉफी जीत गए हो. पाकिस्तान ब्लॉकबस्टर बनाता है. होप इसके ऊपर मूवीज बने. पाकिस्तान इज ब्लॉकबस्टर. I could not agree more, and that's just a fantastic point to I think end the episode. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. आप सबका बहुत शुक्रिया for watching, and this is all we have for you tonight. We'll be back next week with more. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night.